بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ عاقل تیز دار برستی بارش میں گھر میں داخل ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچن کے سودا سلف سے بھرے شاپر تھے۔ وہ خود تو بھیگا ہی تھا، ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے شاپر بھی پانی سے تتر بتر تھے، لیکن ان کے اندر موجود چیزوں کی بچت ہو گئی تھی، جس پر عاقل نے سکون بھری سانس بھری تھی، کیونکہ وہ اپنے اس ٹھنڈ کے موسم میں بھیگنا تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کا لایا سودا سلف بھیگتا اور خراب ہو جاتا تو اس کو اتنی باتیں سننی پڑتیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ عاقل اسی طرح بھیگے لباس اور قدموں کے ساتھ مزید آگے بڑھتا کہ ایک پاٹ دار آواز اس کی سماعت پر پڑی تھی تو وہ ایک دم سے لڑکھڑا سا گیا تھا۔ اس کی بڑی بھابھی تھی جو اس کے گندے کیچڑ والے جوتے اندر فرش پر لے کر آنے پر چیخ رہی تھی۔ عاقل کچھ بولنے کے بجائے بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس نے ایک لاچار نظر چاروں طرف بھی دوڑائی تھی، کیونکہ اس کو اتنی باتیں سنانے والی بھابھی نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں سے شاپر پکڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں بھی بڑی بہو کی تیز آواز کی وجہ سے کچن سے نکل آئی تھی، اور باہر نکلتے ہی اسے جلد ہی سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ تو تیزی سے آگے بڑھتی عاقل کی ماں نے اس کے ہاتھوں سے سودا سلف کے شاپر پکڑے اور اسے وہیں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ یوں جان بخشی پر شکر ادا کرتا ایک بار پھر کھلے آسمان تلے آ نکلا تھا۔ یہاں اب بھی زور و شور سے بارش برس رہی تھی، اس لیے وہ بھاگتے قدموں سے اپنے رہائشی حصے کی جانب بڑھا تاکہ وہ مزید بارش سے بچ سکے اور خشک کپڑے پہن کر اپنے ٹھنڈ سے اکڑتے جسم کو راحت پہنچا سکے۔ وہ جس جگہ پر رہتا تھا وہاں کا چھوٹا سا کچا صحن بھی اس وقت بارش کا پانی اس کی ماں کی محنت کو غارت کر چکا تھا، کیونکہ جگہ جگہ پر پھسلن ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی طور جب عاقل کو سردی میں افاقہ نہ ہوا تو اس نے اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چھوٹے سے کچن میں چلا آیا، جس کے درمیان میں لکڑیوں والا چولہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ کچن اور گھر فریج جیسی سہولت سے بھی فی الوقت دور تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس گھر میں ایک چھوٹا سا فریج موجود تھا، لیکن وہ بہت خستہ حال تھا، جس کی وجہ سے ایک دن وہ بالکل ناکارہ ہو گیا تھا تو اسے بیچنا پڑا۔ عاقل پھر اتنے پیسے جمع ہی نہیں کر سکا کہ نیا فریج لے سکے، اور پھر جلدی ہی اس نے اس بات پر سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی آسائش پر بھی اس کا حق نہیں ہے، جس کے بعد اس نے 2 وقت کی روٹی مل جانے پر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، کیونکہ کبھی کبھار تو وہ بھی مشکل لگنے لگتے تھے، جس طرح آج عاقل کو اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ آج بارش کی وجہ سے اس کی مزدوری نہیں ہو سکی اور وہ خالی ہاتھ ہی واپس آیا تھا۔ اسی لیے عاقل افسردہ چہرے کے ساتھ کچن میں موجود برتنوں میں چائے کے لیے دودھ تلاش کر رہا تھا، لیکن دودھ ہوتا تو ملتا، اسی لیے عاقل بیزار سا ہو گیا۔ اس کا ارادہ کچن سے باہر جانے کا تھا، لیکن پھر دل میں سوچا کہ وہ بس چائے کے قہوے پر ہی گزارا کر لے گا، جس کے بعد اس نے چائے میں پانی کی پتی اور چینی ڈالتے اسے تھوڑا سا پکایا اور اسے ہی اپنا نصیب سمجھتے پینے لگا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر موجود ایک کوٹھی نما گھر سے پکوڑوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور یقیناً ان کو بنانے والے ہاتھ عاقل کی ماں کے ہی تھے، لیکن عاقل جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی ماں کے ہاتھوں کے بنے پکوڑے اور چائے نہیں پی سکتا، اور نہ ہی ایسی کوئی عیاشی وہ برداشت کرنے کے مراحل میں تھا۔ فی الحال تو اس وقت اس کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا جس سے وہ رات کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے، اسی لیے اس کے چہرے پر گہرے تفکر کی پرچھائیاں موجود تھے۔ اسے اپنی تو نہیں لیکن اپنی ماں کی فکر تھی کہ پتہ نہیں وہ اپنے بڑے بیٹوں کے گھر سے کچھ کھائے گی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ اگر وہاں سے بھی خالی پیٹ اس گھر کی طرف آ جاتی تو یہاں بھی اسے کچھ کھانے کو نہیں ملنا تھا۔ عاقل جو اپنی سوچوں میں غرق بیٹھا تھا، جب اسی وقت اسے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو اسے یوں بارش میں آتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا تاکہ اسے تھام سکے اور وہ صحن میں پھسل کر گر ہی نہ جائے، لیکن اس کی ماں کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس نے اسے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کو کہا تو وہ مجبوراً وہیں رک گیا۔ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے گیلا ہو جائے اور بیمار پڑ جائے، جبکہ اس کے پاس چونکہ چھتری کا آسرا تھا
इसी लिए तो वो एहतियात से आगे बढ़ रही थी। आकिल के पास जब उसकी माँ आकर रुकी तो उसने आंखों में नमी लिए माँ को देखा था, जो अब उसके पास आकर रुकते अपने दुपट्टे के पल्लू से छुपाए कुछ पकोड़े निकाल कर आकिल को दे रही थी। शायद उसकी माँ जान गई थी कि वो आज काम करने से रह गया है, तो इसीलिए इस वक्त घर पर मौजूद पाकर वो उसके पास आ गई थी ताकि वो ज़्यादा रंजीदा ना हो। जबकि माँ के लाए पकोड़ों को देखते आकिल बिल्कुल खुश नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अपने बड़े भाइयों के घर से कुछ भी खाना अपनी तौहीन लगता था, क्योंकि वहाँ से जो भी मिलता उसमें से उसे भीख की बू आती। इसलिए वो अपनी मेहनत पर यकीन करने वाला इंसान था और हमेशा अपने बलबूते पर कमा कर खाता था, बेशक उसे भूखा ही क्यों न रहना पड़ जाए। आकिल ने ये कहते हुए पकोड़े एक तरफ रख दिए कि अभी उसे भूख नहीं है, वो बाद में खा लेगा, और फिर अपनी माँ की तरफ देखा तो वो उस पर नज़रें टिकाए हुए थी जैसे कुछ खोज रही हो। उसी वक्त उसकी माँ ने उससे इस्तफसार किया कि क्या आज उसकी मजदूरी का काम नहीं हो पाया। तो आकिल नफ़ी में सर हिलाते हुए नज़रें और सर झुका गया जैसे उसमें उसका कोई कसूर हो। उसकी बात पर चंद पल को उसकी माँ के चेहरे पर भी दुख की कैफियत आई, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल गई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि एक दिन मजदूरी ना होने पर ही उनके बेटे पर अक्सर फाके की नौबत आती है। कुछ देर दोनों माँ बेटे के दरमियान खामोशी का राज रहा, लेकिन फिर वक्त का एहसास होते ही आकिल की माँ उसे ये कहते वहाँ से चल दी कि वो रात का खाना वहीं से खा लेगी और उसके लिए भी लेकर आएगी। वो परेशान नहीं हो और अब बगैर कुछ सोचे वो आराम कर ले, क्योंकि पिछले कई दिन से आकिल लगातार काम कर रहा था, तो आज ही बारिश की वजह से वो काम नहीं हो सका था। आकिल ने माँ की बात पर उसे भी अब घर रुकने का बोला था, लेकिन जानता था कि वो नहीं रुकेगी, क्योंकि उमूमन वो उस वक्त अपने बड़े बेटों के घर होती थी। बस आज उसी के ख्याल से वहाँ पर आई थी। उसकी तवक्को के मुताबिक उसकी माँ ने रुककर उसे कोई जवाब देने की बजाय चलते कदमों के साथ ही कहा कि वो फ़िलहाल यहाँ रुककर क्या करेगी। भला खामखा फारिग बैठे उसे बहुत सी सोचें घेर लेंगी, जिनको सोचते उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा तो वो दोहरी अजियत का शिकार हो जाएगी, जबकि वो उसी अजियत से बचने के लिए खुद को हर वक्त कामों में उलझाए रखती थी ताकि उन्हें कुछ सोचने का मौका ही न मिले और वह अपनी दिमागी बीमारी से बच सकें। उसकी बात सुनते ही आकिल तलखी से मुस्कुराया और सर झटकते अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया था ताकि कुछ देर वो भी अपनी नींद लेकर खुद को तरोताज़ा कर सके। लेकिन उस वक्त उसका बिस्तर भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं था और लाख चाहने के बावजूद वो सो नहीं सका। वो करवट पर करवट बदलते ज़्यादा थकने लगा था, क्योंकि उसका जिस्म रात के कुछ घंटों के अलावा दिन के किसी औकात में भी आराम का आदी नहीं था। उसके इतना ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने के बावजूद सिर्फ आज के काम ना करने से घर में फाकों की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि पिछले दिनों से उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर खर्च हो चुकी थी और जिसके बाद कुछ दिन से बस रोज़ के रोज़ वो उतना ही काम कर पाता जिससे 3 वक्त का खाना ही बन पाता, और इसमें से वो कुछ भी बचा नहीं सकता था। आकिल कल के काम के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि पिछली मजदूरी वाला काम ख़त्म हो चुका था और वो जानता था कि अक्सर एक काम ख़त्म होने पर नया काम ढूंढने में भी 1-2 दिन लग जाया करते, लेकिन कल काम का ना मिलना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो दिल ही दिल में मुख्तलिफ इरादे बांधता आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरता चला गया। यहाँ वो हर किस्म की परेशानी से साफ चेहरा लिए हुए था। अब उसके चेहरे पर छाए परेशानी और गहरी सोचों के तासुरात छटे वहाँ सुकून ने बसेरा कर लिया था, क्योंकि अगर यही पुरसुकून नींद ना आती तो ना जाने कब से वो अपने रोज़मर्रा मामूल से तंग आ चुका होता, या फिर अपनी नस्ल में चलती एक अजीब किस्म की बीमारी का शिकार हो जाता। लेकिन वो इस मामले में खुश नसीब रहा था, और यहाँ तक कि अपने बड़े भाइयों के सामने हसद और रश्क का बाइस भी, जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद पुरसुकून नींद की नेमत नहीं थी। ये घर और आकिल हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ अरसा कबल तक बेशक उसके भाई उससे प्यार मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन रहते उसी घर में थे। वो चूँकि आकिल से उम्र में काफ़ी बड़े थे, कुछ इसलिए भी आकिल उनसे हमेशा दूर रहा था
और वो हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे रहता, जिस पर उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहती कि वो घर से बाहर अपने हम उम्र बच्चों के साथ जाकर खेले, लेकिन वो मान कर ही नहीं देता। तो फिर उसकी माँ भी उससे ज़्यादा इसरार नहीं करती, क्योंकि बेशक वो हर वक्त अपनी माँ के दुपट्टे का एक पल्लू थामे रखता था, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को बिला वजह तंग नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को उसकी मौजूदगी से ज़्यादा मसला नहीं होता और वो खामोशी से अपने घर के काम अंजाम देते। वो लोग जिस घर में रहते थे वो घर 2 कमरों, 1 किचन और वाशरूम पर मुश्तमिल था, लेकिन उस घर का सहन बहुत बड़ा था, जो कि अब कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था, और उसे तकसीम करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकिल के भाई ही थे। आकिल अभी कम उम्र ही था जब उसका बाप इस दुनिया से चला गया था, जिसकी वजह से उसके बड़े भाई पढ़ाई छोड़ते अमली ज़िंदगी में कदम रख चुके थे, जबकि आकिल जैसे तैसे करके अपनी माँ की ख्वाहिश पर पढ़ रहा था। लेकिन उसका ध्यान पढ़ने में बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत सीधा साधा सा बच्चा था, जो कि दुनिया वालों की तमाम चालाकियों से नाबल था, जबकि उसके बड़े भाई उसका उलट थे। वो बहुत तेज़ तरार थे, जिसकी वजह से आकिल उनके सामने दब सा जाता और अक्सर उनके मजाक का निशाना भी बनता रहता। बाप के मरने के बाद बड़े दोनों भाइयों ने ही घर का खर्चा उठाया, जिस पर वो दोनों हमेशा अपना एहसान जिताते नहीं बाज आते। वो दोनों थोड़े ही अरसे में न जाने इतनी तरक्की कैसे कर चुके थे कि लोग हैरान रह जाते, और फिर जैसे ही उनके हाथ पैसा लगा वो चंद दिन में ही अपना रंग ढंग बदल चुके थे। उन्हें यूं चंद दिनों में ही तरक्की करता देखकर आकिल की माँ बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि दिल ही दिल में वो हज़ारों वसवसों को जन्म दे चुकी थी। उसे अपने बड़े बेटों के कमाए पैसों से हलाल की खुशबू नहीं आते थे, जिसकी वजह से उन्हें उनका पैसा इस्तेमाल करने पर एतराज़ होने लगा, जिस वजह से माँ बेटों के दरमियान तलखियाँ बढ़ने लगी थीं। आकिल की माँ ने हर तरीके से अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ना मानते हुए आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि अब उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का नशा सवार हो चुका था, जिससे निकलने को वो तैयार नहीं थे। इस सूरत हाल को देखते आकिल की माँ ने बस खामोशी में ही आफियत जानी थी, जिसकी वजह ये भी थी कि वो माँ के रुतबे को यकसर भुला चुके थे और अपनी माँ के सामने ज़ुबान को खुली चुट्टी देते। वो उनकी ज़ात को 2 कौड़ी का कर देते। इसीलिए अपनी ज़ात की नफ़ी और ख़ुद को मज़ीद बेइज्जत होने से बचाने के लिए वो उनको उनके हाल पर छोड़ चुकी थी। लेकिन चूँकि वो एक माँ थी और एक माँ का दिल अपनी औलाद की तरफ से कभी पत्थर नहीं हो सकता, इसलिए वो अब बस ज़ुबान से उन्हें कुछ कहने की बजाय बस दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ गो रहती कि वही अब उनकी औलाद को सही रास्ता दिखा सकता था। यही वजह थी कि उनके पास पैसे आते ही उन्हें अपना घर बहुत छोटा और गंदा लगने लगा। तो दोनों बड़े भाइयों ने उस घर को छोड़ने का सोचा और जल्द ही अपना इरादा अपनी माँ पर जाहिर कर दिया। वो तो बेचारी आगे से हक्का बक्का रह गई। वो किसी सूरत अपनी औलाद को आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए आकिल की माँ ने उनके आगे एक तजवीज़ रखी, जिसे सुनकर वो कुछ पेशरफ्त के बाद मान ही गए थे। उनकी माँ का कहना था कि चूँकि उनका मौजूदा घर का सहन बहुत बड़ा है, तो वो उनके रिहायशी हिस्से को ऐसा ही रहने दें और दोनों भाई अपने लिए यहाँ जैसा मर्जी चाहें घर बनवा लें। इस बार भी वो अपनी माँ की इल्तिजा को मान पर उस पर जैसे एहसान कर गए थे और अपने घर की तामीर शुरू करवा दी थी। और उस घर को बनते देखकर आकिल और उसकी माँ की आंखें खुलती जा रही थी, क्योंकि वो घर किसी छोटे से महल से कम नहीं था, या फिर उन्होंने कभी कोई ऐसा घर देखा नहीं था। शायद इसलिए भी उन्हें ये बहुत बड़ा और अच्छा लगता था। आकिल की माँ तो बस बहुत से तफक्कुरात में घिरे रहते, जबकि आकिल दिल ही दिल में बहुत खुश होता कि अब वो उस बड़े से घर में रहेगा। लेकिन ये उसकी खुशफहमी साबित होने वाली थी, क्योंकि जब ये घर मुकम्मल बन गया तो उसके दोनों भाइयों ने सफाकियत की हद करते हुए अपनी माँ और छोटे भाई को झूठे मुंह भी उस घर में शिफ्ट होने को नहीं कहा था, जिससे आकिल की माँ को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि आकिल को गहरा धचका लगा था कि कैसे बड़े भाई हैं जो अपने छोटे भाई के लिए ज़रा भी दिल में नरमी नहीं रखते। आकिल इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ले गया था, और जब उसकी माँ ने उसे यूं परेशान और दुखी देखा तो वो खुद भी बहुत रंजीदा हो गई। लेकिन उसने अपने छोटे बेटे को संभालना था, इसीलिए अपने बेटे पर आज एक ऐसा इंकशाफ करने का सोचा
जिसे सुनते शायद उसके दिल को ढारिस मिल जानी थी और उसने उस सूरत-ए-हाल से समझौता भी कर लेना था। अब उसकी माँ को लगा था कि यह सच्चाई आकिल को लाजमी मालूम होना चाहिए ताकि वो अपने भाइयों के रवैये को ज़्यादा दिल पर ना ले, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके भाइयों का इसमें ज़्यादा कसूर नहीं था, बल्कि कसूर उस खून का था जो उनकी रगों में दौड़ रहा था, जो कि एक जालिम और जाबिर इंसान का था, जो उनके बाप का था, और अब वो उसी की दूसरी तस्वीर की शक्ल में मौजूद थे। आकिल की माँ की उसके बाबा से दूसरी शादी थी। पहले वो एक तलाक याफ्ता औरत थी और पहली शादी से उसे 2 बेटों के साथ बेइंतहा दुख दर्द मिले थे। उसका पहला शौहर उस पर बहुत जुल्म ढहाता था। गाली गलौज के साथ वो उसके साथ मारपीट का मामला भी रखता, लेकिन ये सब सहने के बावजूद आकिल की माँ सब्र से अपने बेटों की वजह से उसके साथ रहने पर मजबूर थी। उसने एक दिन मामूली सी बात पर उससे झगड़ा करते उसे तलाक दे दी, जिसकी वजह से वो बेचारी उजड़ी हालत में अपने किसी रिश्तेदार के घर रहने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उसके वालिदैन हयात नहीं थे और ना ही कोई भाई बहन, तो उसके पास सच छुपाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। और अब तो वो अकेली जान नहीं थी, बल्कि उसके साथ 2 नन्ही जाने भी थे जिनका ख्याल उसे रखना था, मगर उसके रिश्तेदार किसी तौर पर उसे ज़्यादा दिन घर में बर्दाश्त नहीं कर सके और उसकी इद्दत पूरी होते ही एक सादा से शख्स के साथ उसके ना चाहने के बावजूद उसकी दूसरी शादी कर दी गई, जिस पर वो ये सोचते समझौता कर गई कि वो इंसान उसे कबूल करने के साथ साथ उसके दोनों बच्चों को भी कबूल कर रहा था। उस शादी के बाद आकिल की माँ को ज़िंदगी की कोई आसाइश तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसे ज़िंदगी का सुकून वाफर मिकदार में मैसर आ गया था, क्योंकि उसका मौजूदा शौहर एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके साथ उसने एक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू की। और फिर आकिल की पैदाइश पर जब उसकी माँ को लगा कि कहीं अब उसके पहले बच्चे पसे मंज़र में न चले जाएं, लेकिन उसके शौहर ने उसकी हर मनफी सोच को गलत साबित कर दिया और हमेशा उनको अपने बड़े बच्चों की तरह ही घर में हैसियत दी। लेकिन यहाँ एक तरफ वो गुजरते वक्त के साथ अपने दूसरे शौहर से मुतमईन होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने दोनों बड़े बच्चों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसकी एक बड़ी वजह उसका बड़ा बेटा था, जो कि अपनी माँ की दूसरी शादी के वक्त काफ़ी समझ बूझ रखता था। वो अपने दूसरे बाप को सही तरीके से कबूल नहीं कर सका था और उसके साथ उसने अपने छोटे भाई को भी ज़्यादा खुलने मिलने नहीं दिया। उसने हमेशा अपने दूसरे बाप और खुद के दरमियान एक तकल्लुफ़ की दीवार कायम रखी थी। जो भी था, उसकी माँ की ज़िंदगी में दूसरा शौहर आ जाने से उसकी तवज्जो बढ़ी थी और फिर उनकी माँ के पास एक और बेटा हो जाने से उन्हें लगा था कि उनकी अहमियत कम हो गई है और वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता सबसे दूर होते चले गए। पहले पहल तो सबको यही लगा था कि अलग थलग रहना इन बच्चों की आदत है, लेकिन जब आकिल की माँ को अपने बड़े बच्चों के दिल में मौजूद अपने मौजूदा शौहर और बेटे के लिए बुग़्ज़ और कुदूरत महसूस होने लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आकिल की माँ फिर चाहकर भी उनको ये एहसास नहीं करवा सकी कि उनकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में अव्वलीन दिन जैसी है। अभी आकिल की माँ उसी परेशानी में मुब्तला थी कि उसे नहीं पता था कि एक बार फिर से वो उस दुनिया में अकेली रह जाने वाली थी, क्योंकि वो बदनसीब वाक़ हुई थी, क्योंकि उसका दूसरा शौहर भी बस कुछ ही अरसा उसका साथ निभा सका और एक दिन हार्ट अटैक आ जाने से मौत के मुंह में चला गया था। आकिल और उसकी माँ के लिए ये बहुत बड़ा धचका था, जबकि दोनों भाइयों को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो दोनों जवानी की दहलीज के करीब पहुँच चुके थे। आकिल की माँ ने जब ये सारी सच्चाई आकिल के सामने खोली तो वो कुछ पल के लिए साकत हो गया था, लेकिन फिर उसे उस सच्चाई से समझौता करना ही था और इसके साथ वो उन दोनों भाइयों का अपनी माँ के साथ सलूक भी देख चुका था, तो उनसे उसे अपने साथ अच्छाई की उम्मीद भला कैसे रख सकता था। वो दोनों बड़े भाई मतलब परस्त साबित हुए थे, क्योंकि जब कभी उन्हें कोई मतलब होता तो वो फ़ौरन से अच्छे बन जाया करते, जिससे आकिल और उसकी माँ धोखा खा जाते और एक बार फिर काम पूरा हो जाने पर वो वैसे ही एक नदी के दूसरे किनारे जैसे हो जाते जो कभी मिल नहीं सकते थे। उन दोनों भाइयों ने उनसे अलग होते ही उनका खर्चा पानी देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आकिल ने अपनी पढ़ाई छोड़ते मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसके बाद फिर कभी जब उन्होंने दुनिया दिखावे को उन्हें पैसे देने की कोशिश भी की तो आकिल से पहले उसकी माँ ने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहीं से भी उनको हलाल तरीके से कमाया पैसा नहीं लगता था और वो हराम खाना नहीं चाहते थे। वक्त गुजरते उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी पसंद से शादियां कर ली
और फिर उनकी बेगमात ने उनके घर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। अपने शोहरों की देखा देखी उन्होंने आकिल और उसकी माँ को नौकरों जैसा दर्जा देना शुरू कर दिया, जिस पर उनके शोहरों ने कभी कोई रोक टोक करना ज़रूरी नहीं समझा, जिससे वो दोनों माँ बेटा बस एक दूसरे तक महदूद होकर रह गए थे। हक हलाल की कमाई के लिए आकिल दिन रात मेहनत करता ताकि अपना और अपनी माँ का पेट भर सके और उनको किसी के सामने भी हाथ न फैलाना पड़े। उसकी माँ इतनी ज़्यादा परेशानियाँ देखते शब बेदारी का शिकार हो चुकी थी। उसे किसी भी तरीके से नींद नहीं आती थी, जिसका आकिल ने हर मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में आकिल को बाद में पता चला कि ये उसकी माँ को लगी बीमारी मोरोसी है और उसकी माँ से ये बीमारी उसके भाइयों को भी लग चुकी थी। लेकिन वो खुशकिस्मती से अभी तक उससे बचा हुआ था, क्योंकि अक्सर ढलती उम्र में उस बीमारी के असरात ज़्यादा मुरतब होना शुरू होते थे। पिछले दिनों उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पास कुछ नहीं बचा था। माँ तो इलाज करवाने को तैयार नहीं थी, लेकिन आकिल ने ही ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर से चेकअप करवाया था, जिसके बाद उसकी माँ ने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए अपने बड़े भाइयों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिस पर आकिल ने उनकी मुखालफत की, लेकिन वो नहीं मानी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से खुद से उसके बड़े भाई उसकी माँ को अपने घर आने का कहते थे, क्योंकि उनकी बीवियाँ माँ बनने के मराहिल से गुजर रही थी, तो उन्हें किसी की ज़रूरत थी जो उनका अच्छे से ख्याल रख सके। तो माँ जी को लेने आ पहुँचे। उनके इस तरह अपना मतलब पढ़ने पर आ धमकने पर आकिल को बहुत गुस्सा आया था। उसने माँ जी के कुछ बोलने से पहले ही मना कर दिया, जिस पर उसके भाई उसे बुरा भला कहते वापस चले गए, लेकिन उसकी माँ उसके मना करने के बावजूद चली गई थी। लेकिन वो वहाँ से कुछ लेती नहीं थी और ना ही कभी उसने वहाँ खाना खाया था, जो कि वो हमेशा आकिल के पास ही आकर खाती थी। लेकिन आज मजबूरी के हाथों मजबूर वो खुद और अपने बेटे को भी उसी घर का खाना खिलाने लगी। रात का काम करके जैसे ही आकिल की माँ फारिग हुई तो थोड़ा सा अपने लिए और आकिल के लिए एक प्लेट में खाना निकालती किचन से निकले तो बाहर उसकी बड़ी बहू उसकी तरफ बड़ी तंजिया निगाहों से देख रही थी, जिस पर आकिल की माँ को ऐसे लगा जैसे वो चोरी करते पकड़ी गई हो और वो शर्मिंदगी के बोझ तले दबने लगी। उसकी बहू कुछ बोलने के बजाय बस ऐसे ही तीखी नज़रों से देखती वहाँ से हट गई। आकिल की माँ को उसकी नज़र से ऐसे लगा जैसे वो उसे जिता रही हो कि देखा, पड़ गई ना हमारे खाने की ज़रूरत, तुम जो अकड़ दिखाती थी वो आज टूट गई। आज की रात आकिल की माँ और खुद आकिल को असल बेबसी और लाचारी का सामना करना पड़ा था। आकिल की माँ खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन वो आकिल को भूखा नहीं देख सकती थी, इसीलिए अपनी ममता के हाथों मजबूर वो ये कर गए थे। और अब बहू से सामना हो जाने से उसकी आंखों में ना चाहने के बावजूद आंसू आ गए थे। बेशक उसने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़रें ही सब कुछ कह गई थी। वो उसी तरह रात के अंधेरे में बाहर की जानिब बढ़ गई थी। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि ठंड बहुत बढ़ गई है और उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े उस ठंड को रोकने के लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए वो तेज़ कदमों से अपने कच्चे मकान की तरफ चल पड़ी थी। वो मज़ीद बीमार होकर अपने बेटे आकिल का खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उस रात जब वो घर पहुंची तो आकिल को सुकून से सोया देखकर खुद भी पुरसुकून हो गई थी और फिर उसने आकिल को नींद से उठाकर खाना खिलाना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि शुक्र अदा किया था कि उसे अपने बेटे को ये खाना नहीं खिलाना पड़ा, जिसमें यकीनन रब की रज़ा शामिल थी। वो आगे भी अल्लाह से पुरुम्मीद थी कि उन्हें हमेशा ऐसे बुरे कामों और हराम के खाने से बचाए रखे। उसका जिस्म थकन से चूर था, इसीलिए वो अपने बिस्तर पर ये सोचते लेट गई कि क्या पता आज उस पर नींद हावी हो ही जाए, और वाकई कुछ देर में ही वो नींद में चली गई थी। सुबह जब आकिल की आंख खुली तो अपनी माँ को सोया देखकर वो बहुत खुश हुआ, इसीलिए दबे कदमों वो उठता कमरे से बाहर चला गया। उसे जैसे भी करके उस नाश्ते का इंतज़ाम करके अपने काम के लिए निकलना था। बाहर निकलते ही उसे बहुत अच्छा मौसम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ एक तरफ बारिश ने हर चीज़ को निखार दिया था, वहीं धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, जिससे उसे अपने काम की उम्मीद भी बंधी थी। वो एक दुकान पर आया ताकि सुबह के नाश्ते के लिए कुछ ले सके, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और वो उसी तरह पहली बार उधार लेना चाह रहा था, लेकिन वो उसके लिए खुद में हिम्मत नहीं जता पा रहा था।
वो खुद को मजबूत करते दुकान वाले के पास ही आ गया था। उससे बात करते उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जिस पर दुकान वाला शख्स धीमे से मुस्कुराया था। वो किसी हद तक उनके हालात के बारे में जानता था, इसीलिए उसके झिझक समझ रहा था, क्योंकि आकिल उससे हमेशा ही घर का सौदा सल्फ लेता था और आज तक उधार की नौबत नहीं आए थे। यकीनन वो आज बहुत हद तक मजबूर था, जो यूं नजरें झुकाए खड़ा था। आकिल अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लिए घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब उस पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई थी कि उसने ये उधार भी जल्द अज जल्द चुकाना था। इसीलिए घर वापसी पर उसके कदमों में तेज़ रफ्तारी थी और दिलो दिमाग में ज़्यादा काम करने का जोश व जज्बा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जितनी ज़्यादा ज़रूरत उसे काम की थी, उतना ही ज़्यादा उसे हस्बे मंशा काम नहीं मिलना था। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसकी माँ का शुक्र करना और सब्र करना एक दिन रंग लाने वाला था। आकिल तो वैसे भी अपनी माँ का बहुत फर्माबरदार बेटा था, तो उसे उस फर्माबरदारी का सिला आखिर मिलना ही था। लेकिन वो अभी फिलवक्त उसे समझ नहीं सकता था, इसलिए दिल में हज़ारों वसवसे लिए हुए था। दिल में उम्मीद की किरण भी मौजूद थी, वहीं कहीं नाउम्मीदी की हवा भी मौजूद थी, जो उस किरण को ख़त्म करने के चक्रों में थी। आकिल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके हाथों में दूध और नाश्ते का सामान देखते उसकी माँ से बेसाख्ता बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह और शुक्र के अल्फाज निकले थे। उसने आकिल से उस वक्त किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया और उसके हाथों से सामान लेते किचन की तरफ चल दी। आकिल भी हमेशा की तरह उसके पीछे ही आया था और अपनी माँ की मदद करवाने लगा ताकि वो वक्त पर काम के लिए जा सके। नाश्ते के बाद उसकी माँ ने उसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया, लेकिन उस दिन आकिल जो दिल में सोचे हुए था कि वो आज पहले से ज़्यादा काम करेगा ताकि कल जो काम का हर्ज हो गया था वो उसे पूरा कर लेगा। लेकिन वो उस दिन पहले से ज़्यादा मेहनत क्या करता। उसे तो पहले जितना काम मिलना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी और सारा दिन मारा मारा काम की तलाश में फिरता रहा। लेकिन उसे आज काम नहीं मिलना था और ना ही मिला, तो वो भी बिल्कुल आज रात के वक्त अपनी माँ की तरह खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उस वक्त शाम का वक्त था और उसने सुबह से नाश्ता कर रखा था, लेकिन काम के तलाश ने उसे भूख प्यास का एहसास भुला दिया था। वो अब तक कई बड़े अमीर लोगों की धुतकारें भी सुन चुका था, क्योंकि वो उसे काम देने से इनकारी थे। लेकिन आकिल उनकी बात को समझे बगैर ज़बरदस्ती उनसे काम देने की इल्तिजा कर रहा था। वो थका हारा आंखों में नमी लिए एक दरख्त के नीचे आ बैठा और वहाँ बैठा वो अपने खाली हाथों को देख रहा था, जो सुबह ही की तरह आज साफ सुथरे थे, क्योंकि आज उनसे कोई मुशक्क़त नहीं ली गई थी। आकिल ना जाने कब तक वहीं गमगीन बैठा रहता कि उसे अंधेरा छाने का भी एहसास नहीं हुआ कि उसी वक्त एक अजीब सी आवाज़ पर अपने होश में आया था, जिसकी वजह से उसने अपने अतराफ में देखा तो उसे एक तरफ कुछ फासले पर एक बिल्कुल सफ़ेद बकरी बैठी नजर आई, जो शायद किसी तकलीफ में थी। आकिल कुछ पल उसे देखता रहा। उसे उस वक्त अपना गम भूल गया था। फिर वो ये सोचते हुए अपनी जगह से उठा कि वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर सका, तो क्या हुआ, वो उस बकरी बेचारी के लिए तो कुछ कर ही सकता है। आकिल ने उस बकरी के पास देखा तो वो तकलीफ से अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी, लेकिन आकिल को समझ नहीं आई कि आखिर उसे तकलीफ क्या है। उसे पहले लगा कि शायद उसके बच्चे उससे बिछड़ गए हैं, इसीलिए वो यूं तड़प रही है, तो वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी कोई बकरी का बच्चा नजर नहीं आया और ना ही कोई और जानवर। तो फिर बकरी के पास नीचे बैठा और उसे खड़ा करने के लिए उसे हाथ लगाया, जिस पर वो थोड़ा ताज्जुब का शिकार भी था कि अब तक ये बकरी उसे देखते भागी क्यों नहीं थे, क्योंकि उमूमन जानवर अपने पास किसी इंसान को महसूस करते डर कर भाग जाया करते। उसके इस ताज्जुब का जवाब उसे जल्द ही मिल गया था, क्योंकि जब बकरी ने खड़ा होने की कोशिश की तो वो खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी एक टांग पर वजन नहीं पड़ रहा था। शायद वो कहीं गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी टांग में मसला हो गया था। आकिल ने उसकी कोशिश करने के बावजूद खड़ा ना होने पर एक नज़र बकरी को देखा और फिर अपने दोनों बाजू को आगे करते हुए उस बकरी को उठा गया, जिस पर बकरी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। शायद वो जान गई थी कि उसे इस शख्स से कोई मसला नहीं होगा। वो बकरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से आकिल उसे आसानी से उठा गया था। आकिल को उस बकरी के सफ़ेद बालों की खूबसूरती हैरान कर रहे थे। ऐसे लगता था जैसे उसने कभी ज़मीन पर मिट्टी में कदम ही न रखा हो, या फिर उस बकरी का मालिक उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता होगा, जो उसके पास से किसी किस्म की बदबू नहीं आ रही थी।
आकिल जो अभी कुछ देर पहले बहुत दुखी था, अब वक्ती ही सही सब कुछ भूल गया था। वो उस बकरी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। वो घर तक जाते थकने लगा था, लेकिन फिर भी उसने उस बकरी को नीचे उतारने की कोशिश नहीं की थी। वो बस तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहा था ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। जब आकिल घर पहुंचा तो उसकी माँ भी उसी वक्त घर में दाखिल हुई थी। अब वो हैरान नज़रों से आकिल के पास बकरी को देख रही थी। आकिल ने कच्चे सहन में एक तरफ बकरी को बिठाते अपनी माँ से पूछा था कि क्या कुछ ऐसा मिलेगा जो वो बकरी को चारे के तौर पर डाल सके। तो उसकी माँ कोई सवाल किए बगैर दोबारा से घर से चली गई और जब वापस आई तो उसके पास सब्जियों और फ्रूट के काफ़ी सारे छिलके थे जो कि शायद वो अपने बड़े बेटों के घर से लाए थे, लेकिन बकरी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था, जिसकी वजह आकिल को उसकी तकलीफ लगी थी। तो उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ भी उसके साथ बैठी नीचे बकरी की टांग देखने लगी। तो कुछ समझ आने पर उसने कुछ ऐसा किया कि एक कपड़ा लेकर बकरी की टांग को सीधा करके उस कपड़े से लपेट दिया था, जिससे अब बकरी को कुछ सुकून होने लगा था। उससे फारिग होते ही दोनों माँ बेटा उस पर नजरें जमाए अपनी अपनी सोचों में गुम थे। आकिल की माँ शायद जान गई थी कि आज उसे काम नहीं मिला, इसीलिए कुछ बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ आकिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ की उम्मीद कैसे तोड़े। इतनी देर में बकरी अब खुद से खड़े होने की कोशिश करते उठ खड़े हो गए थे, जिस पर आकिल की नज़र उसके दूध के थनों पर पड़ी जो दूध से भरे अब अकड़ रहे थे। ये भी शायद उस बकरी की तकलीफ का बायस बन रहे थे, जिस पर आकिल ने सब सोचों को झटका था और किचन से एक बर्तन लाते उसका दूध धोने लगा था। बकरी के दूध के हिसाब से आकिल छोटा बर्तन लाया था। जब वो दूध से भर गया लेकिन अभी दूध ख़त्म नहीं हुआ था तो आकिल को और बर्तन लाना पड़ा। तब उसने इतना दूध धो लिया था कि जिससे उसकी माँ का और ख़ुद का पेट आसानी से भर सकता था। ये सोचते आकिल की सारी परेशानी जाने लगी और वो दिल में मुतमईन होने लगा कि शायद अल्लाह ने उस बकरी को उसके वसीले के तौर पर ही भेजा था। आकिल ने अपनी माँ के साथ उस बकरी को भी उसी का दूध पीने के लिए डाल दिया और अब की बार वो बकरी दूध पी भी गई थी। दोनों माँ बेटों ने पेट भरने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन सोने से पहले आकिल ने अपनी आदत के मुताबिक सारी बात अपनी माँ को बता दी थी, जिस पर उसकी माँ ने उसे कहा कि वो जिस जगह से वो बकरी लाया है वहाँ इर्द गिर्द के सब घर वालों से मालूम कर ले कि ये बकरी किसकी है। वो इस तरह किसी की चीज़ को अपने घर में नहीं रख सकते। और उसने मज़ीद कहा कि इस बकरी की बदौलत वो लोग आज भूखे सोने से बच गए। उनके लिए यही बात काफ़ी है। वो अब किसी लालच में किसी की अमानत को बिला वजह घर पर नहीं रखेंगे। उनकी बातें सुनते आकिल ने इस बात में सर हिलाया था, यानी वो भी अपनी माँ की बात से अच्छे से मुत्तफिक था और एक बार फिर से वो अगले दिन के लिए अच्छे की उम्मीद लेकर सो गया था। लेकिन मुकम्मल नींद में जाने से पहले उसने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, जो पता नहीं वाकई में सो चुकी थी या फिर वैसे ही आंखें बंद कर रखी थी, जिस पर आकिल ज़्यादा सोच नहीं सका और गहरी नींद में उतर गया था। लेकिन वो जान नहीं सका था कि आज उसकी माँ उससे पहले ही गहरी नींद में चले गए थे, जो ना जाने कैसे मुमकिन हुआ था। सुबह होते ही एक बार फिर से आकिल ने रात वाला अमल दोहराया था और बकरी का दूध पीते वो काम पर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ था। उसने पहले तो बकरी को साथ ले जाने का सोचा, लेकिन फिर वो उसकी तकलीफ का सोचते अकेला ही घर से निकल गया था। इरादा ये था कि वो घर घर जाकर मालूम कर लेगा कि किसी की कोई बकरी तो नहीं गुम हुई, और जिसकी गुम हुई होगी वो उसे अपने साथ लेकर आएगा। आकिल को उस दिन काम बहुत आसानी से मिल गया था, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द काम करता उस जगह पहुंचा जहाँ से उसने बकरी को उठाया था। लेकिन उसे वहाँ दूर नज़दीक तक कोई घर नज़र नहीं आया। तो वो कुछ पल वहीं तजब्जब की हालत में खड़ा रहा कि अब क्या करे। लेकिन फिर कुछ ना समझ आने पर वो घर वापसी की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि वो उस बकरी को कल अपने साथ लेकर आएगा, शायद उसके मालिक की उस पर नज़र पड़ जाए तो वो अपनी बकरी उसे लेकर जाए। आकिल घर पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि बकरी अपनी जगह पर नहीं थी। वो परेशानी से घर से अपने बड़े भाइयों के घर की तरफ बढ़ा कि कहीं बकरी उनकी किसी चीज़ को कोई नुकसान न पहुंचा दे।
जिससे वो लोग सीख पा होते उस बकरी को ही मार दें। लेकिन आकिल के अपने घर से निकलते ही उसे वो बकरी उस तरफ आती नजर आई तो वो पुरसुकून हो गया था। उसके साथ ही उसने एक नज़र अपने भाइयों की कोठी के सरसब्ज लॉन पर भी डाली थी कि बकरी कुछ खराब तो नहीं कराई। लेकिन सब कुछ ठीक होने पर आकिल ने शुक्र किया और उसे लिए जल्दी से उसकी जगह पर लाते उसे छोटी सी रस्सी के साथ बांध भी दिया था। लेकिन आकिल नहीं जानता था कि वो बकरी अपना कारनामा सर अंजाम दे आई थी। उसके कारनामे का तो आकिल को तब पता चला जब उसकी माँ ने रात को आकर बताया कि आज उसकी बड़ी बहू के कमरे में उसके खूबसूरत बट पर एक बकरी गंद बिखेर कर आई है। ये बात सुनते आकिल परेशान हो गया तो उसकी माँ ने कहा कि वो परेशान ना हो क्योंकि किसी ने बकरी को उस घर में दाखिल होते नहीं देखा। सब तो इस बात पर हैरान है कि आखिर ये बकरी आई कहाँ से है, जबकि वो ये बात जानती थी, इसीलिए बस खामोशी इख्तियार किए रखे थे। अपनी माँ की बात सुनते आकिल ने अपनी माँ से कहा कि वो आइंदा दरवाज़ा बाहर से अच्छे से बंद करके जाया करे, नहीं तो वो लोग उन्हें तो बुरा भला कहेंगे ही, साथ उस बकरी के साथ भी ना जाने क्या सलूक करें। उसकी बात से इत्तफाक करते आकिल की माँ ने सर हिलाते उसके पास से उठने की कोशिश की तो उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी तो उसने हाथ बढ़ाते जैसे ही वो चीज़ उठाई तो वो एक सिक्के की माने था। लेकिन वो कोई आम सिक्का नहीं था बल्कि सोने का सिक्का लगता था, जिसे देखते ही दोनों माँ बेटा कभी हैरानगी से उस सिक्के को देखते तो कभी उस बकरी की तरफ, जो बहुत अजीब व गरीब साबित हो रही थी। उनके पास किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थे क्योंकि ये सिक्का उसी बकरी के फुजले में से ही मिला था। आकिल ने खुद को सख्ते से निकालते अपनी माँ से कहा कि लाजमन ये बकरी कहीं से ये सिक्के निगल कर आई है, जिसकी वजह से ये उसके फुजले में से निकला है। जिस पर उसकी माँ को भी यही लगा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उससे अगले दिन आकिल अपने प्रोग्राम के मुताबिक उस बकरी को अपने साथ लेकर गया था, जिसका मकसद उस बकरी को उसके मालिक तक पहुंचाना था। साथ ही वो उसकी कल वाली हरकत से भी डर गया था, इसीलिए उस बकरी को अपने साथ ही रखना उसे मुनासिब लगा था। लेकिन उस दिन भी देखा तो उस बकरी को कई लोगों ने उसकी खूबसूरती की तारीफ भी की थी, लेकिन उसका मालिक नहीं मिला था। इसीलिए शाम को अपने मुकर्ररा वक्त पर वो उसे घर ले आया और ख़ास उसके फुजले पर नज़र रखना शुरू की। और फिर उस बकरी ने उस रात भी सोने का सिक्का निकाला तो दोनों माँ बेटा हक तक रह गए थे। उसके बाद तो जैसे फिर ये सिलसिला चल निकला था, जिससे उन माँ बेटे की ये गलत फहमी तो दूर हो गई थी कि ये बकरी कुदरती तौर पर ही अपने फुजले में से सोने का सिक्का निकालती है। जब काफ़ी दिन तक उस बकरी को कोई ले जाने नहीं आया तो उन्होंने उसे रब की तरफ से नेमत जाना और उसके सोने के सिक्के और दूध से फैज़याब होने लगे। सोने के सिक्के बेचते बेचते उनके पास बहुत सारा पैसा जमा होने लगा था, जिससे उन्होंने अपना पुराना घर ख़त्म किया और अपने बड़े दोनों भाइयों की छोटी सी कोठी के मुकाबिल एक महल की तरह का घर तामीर करवाया। कोई भी उनके बदलते हालात देखता तो दांतों में उंगलियां दाब कर रह जाता। बाहर के लोगों को भी यही लगा कि लाजमन आकिल भी अपने बड़े भाइयों की तरह बुराई में राग़िब हो गया है, और उसके भाइयों को भी यही लगता। लेकिन उनसे ये बात हज़म नहीं होती कि वो उनसे बाद में उस तरफ आने के बावजूद उनसे ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है। किसी का भी शक उस तरफ नहीं गया और ना ही ज़्यादा लोग जानते थे कि आकिल के पास कोई बकरी भी है। लेकिन एक दिन आकिल की भाभीयों ने उनसे हसद की वजह से दिन रात उनका पहरा देना शुरू कर दिया और सारा राज जान लिया। तब उन्होंने बकरी चुराने का सोचा था और अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब तक उन्हें तंग करने वाली यकीनन यही बकरी है। वैसे भी उन्हें उस बकरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो बहुत शरारती थी और कभी उनकी पकड़ में नहीं आती थी। इसीलिए रात मौका देखते ही उन्होंने शोहरों को बताए बगैर ही ये काम करने का सोचा। लेकिन रात होने पर वो दोनों जैसे ही बकरी को पकड़ने उसकी तरफ आए तो वहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि वो वापस भागने की भी खुद में हिम्मत नहीं पाती थी और नतीजतन वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। सुबह जब आकिल और उसकी माँ ने उन्हें वहाँ बेहोश देखा तो हैरान हुए कि अगर वो दोनों बकरी चुराने आई भी थी तो यहाँ बेहोश कैसे हुई। उन दोनों को उनके घर पहुँचा दिया गया था और उन दोनों ने होश में आते ही सारी कहानी अपने शोहरों को भी सुनाई तो उन्हें हरगिज़ यकीन नहीं आया
اور اپنی بیویوں کے کہنے پر خود اس بکری کو پکڑنے آپ پہنچے تھے، لیکن ان کا حال بھی بیویوں والا ہی ہوا تھا۔ لیکن وہ بے ہوش ہونے سے بچ گئے تھے اور واپس گھر آ گئے تھے۔ یہاں آ کر بھی کئی دن بخار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کسی باہر کے انسان کو تو عاقل کی امیری سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، اسی لیے کوئی اس معاملے میں بھی نہیں پڑا تھا، بس ان دونوں بھائیوں کے اور ان کے بیویوں کے، اور انہوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا تھا۔ آئندہ اس طرف جانے سے بھی توبہ کر لی تھی، لیکن انہیں وقت گزرنے کے ساتھ اپنے کیے گئے تمام برے کام چھوڑنے بھی پڑے تھے اور ان سے توبہ بھی کرنی پڑی، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کا سارا برا کام بند ہوتا چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ سب عاقل اور اس کے پاس موجود بکری کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کنگال ہونے پر وہ عاقل کے پاس دوڑے آئے تھے اور اس سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ ان کی جان اپنی بکری سے چھڑوا دے۔ تو عاقل بکری کا سنتے ہی حیران ہوا، کیونکہ اپنے بھائیوں کا راہ راست پر لانے کا کام تو عاقل نے کیا تھا۔ یہاں اس بکری کا ذکر کیا تو اس نے اس بابت سے اپنے بھائیوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے منون سارا ماجرا کہہ سنایا کہ اس کے پاس جو موجود بکری ہے وہ کوئی معمولی بکری نہیں ہے۔ یہ بات تو عاقل بھی جانتا تھا، لیکن ان کی اگلی باتوں نے عاقل کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اس کی بکری کا تعلق لازماً کسی جادوگر گھرانے سے ہے، کیونکہ جب بھی وہ اس کے پاس آتے ہیں اس بکری کے پاس انہوں نے بہت عجیب و غریب مخلوق بیٹھی دیکھی تھی، جس سے بکری باقاعدہ کسی انجان آواز میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ عاقل کو اپنے بھائیوں کی بات پر یقین آنے لگا تھا، ساتھ ہی وہ اپنی بکری سے خوفزدہ بھی ہوا تھا، جسے محسوس کرتے اس کی بکری نے باقاعدہ انسانوں والی آواز نکالتے عاقل سے کہا کہ وہ اس سے گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اس کا مسیحا ہے، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ بس ان لوگوں کے لیے بری ہے جو اس کے ساتھ یا پھر عاقل اور اس کی ماں کے ساتھ برا کرتا ہے۔ اور پھر بالکل پہلے کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ بکری اپنی مرضی سے ان کے پاس رہی تھی اور عاقل کے بھائیوں کے سدھرنے پر ان کا بھی ساتھ دینے لگی تھی، اور وہ سب ایک ہی گھر میں رہنے لگے تھے، اور جس سے عاقل کی ماں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔